کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، بات ابھی کیا پوری صحیح طریقے سے وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے آپ کی، جیسے آپ بریلوی کے تعلق سے زیادہ پوسٹ کرتے ہیں آپ یار بریلوی آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے؟ میں تو حدیث ڈالنا ہوں بس، اگر باقی تو اور کچھ نہیں، حدیث تو آپ بالکل صحیح ڈالتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ مسئلہ ایسے بنا ہے، کبھی آپ تقلید کے تعلق سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ میں نے یار پوچھا جائے میں نے حضرت سے کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، میں نے آپ کو وسیلے کے تعلق سے اس حدیث کی شرح بتائی، پھر بھی آپ وسیلے کے قائل نہیں ہوئے۔ پھر آپ کو میں بتاؤں شرح جو ہے نا، شرح جی اس میں اپنے لکھ میں ڈالتے ہیں علماء کرام۔ کیا مطلب؟ اچھا علماء کرام اپنے لکھ میں ڈالتے ہیں، لکھ میں، اچھا لک میں ڈالتے ہیں، تو آپ لک میں آپ ان کی شرح کو اگر پتھر کی لکیر سمجھ لو گے نا تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ تو حضرت جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ بخاری کی حدیث کے تعلق سے کہ جس میں نماز، اور جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو عربی پڑھتے ہو، جی تو اگر کوئی شخص عربی کا ترجمہ اپنے حساب سے کرے، جی باقی اور الگ ہٹ کے کرے، بالکل الگ ہٹ کے، تو آپ اس کو مان لو گے کیا؟ تو آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ بالکل الگ ہٹ کے، بالکل آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہو؟ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ الگ ہٹ کے ہے یا اس سے میچ ہے، کس سے میچ کھانا چاہیے بات؟ سب کو دیکھیں گے، سب کو دیکھیں گے نا، ہاں سب کا ترجمہ میچ ہونا چاہیے۔ ہاں تو ابھی تو کسی اختلاف نہیں ہے نا۔ نہیں میں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے اپنے بک میں ڈال رکھے ہیں، شرح میں تو ڈالیں گے کیونکہ اپنی تفسیریں لکھتے ہیں، شرح کرتے ہیں، تو سب پہ اتفاق کس چیز پہ ہے؟ سب کا اتفاق جمہور کا اجماع کس چیز پہ ہے؟ اب امام ابن کثیر جی جب وہ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں نا، جی تو وہ اپنی رائے بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اور امام وہ کیا نام اس کا مدرسی، وہ اپنی رائے ڈالتے ہیں۔ امام وہ کیا بولتے ہیں ان کو، ڈاکٹر اسرار، وہ تفسیر کرتے ہیں، تو وہ بھی، یعنی جتنے بھی علماء کرام ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی لوگ میں ڈالتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا ہاں جی، یہ ہے اصل میں آپ سے بہت عوام کی نیت کرنے کے لیے نہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کی نیت کیا چھوڑی ہے، آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ، سنو، وہ سب اپنے لک میں ڈالتے ہیں، تو اب ایک انسان کو حق کیسے تلاش کرے گا؟ مطلب اس کو حق کیسے ملے گا؟ ان سب نے تو اپنے لک میں ڈال رکھی ہے، یعنی کہ جنہوں نے 1400 سال سے لے کے اب تک دین ہم تک پہنچایا، ان سب نے اپنے لک میں ڈال رکھی ہے، تو ہم کیا کریں؟ جیسے کہ ایک شخص ہے وہ کھیتوں میں، ایک منٹ، جیسے کہ ایک شخص ہے وہ کھیتی کسانی کرتا ہے، زندگی سے اس نے الف بے تک نہیں پڑھا، کچھ نہیں آتا اس کو، اب وہ اپنے لک میں کیسے ڈالے؟ کیا کرے؟ حق کو کیسے تلاش کرے؟ اگر وہ اماموں کو چھوڑ کے ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھے گا تو کیسے سمجھے؟ وہ نماز کے مسئلے کیسے نکالے بخاری مسلم سے، قرآن اور حدیث سے، روزے کے، نکاح کے، طلاق کے، یہ سارے بتاؤ۔ سنجیدگی سے بات کریں گے، آپ سنیں تھوڑا سا۔ نہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤ، جو میں نے ابھی مسئلہ رکھا نا کہ ایک انسان جو کھیتی کسانی کر رہا ہے، ہاں یہی بتاؤ۔ اب ایک بات بتائیں، ہدایت کون دیتا ہے؟ بھائی ابھی رکو، میں نے کیا کہا؟ ہدایت اللہ تمہارے گھر پہ، ایک منٹ، تمہارے اندر فرشتوں کو بھیج کے تو ہدایت نہیں دے رہا گھر کے اندر، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی پڑھنے سے ہدایت مل رہی ہے۔ تو مجھے سن تو لو بھائی، اب وہ جو کھیتی کسانی کر رہا ہے، جو پڑھنا تک نہیں جانتا،
भाई दो बातों में फैसला। पहले आप सुने, बात कर दो, फिर हजरत आपको जवाब देंगे। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझो। एक खेतों में काम करने वाले इंसान है, एक परचूनी की दुकान लगाने वाला इंसान है, एक पंचर लगाने वाला इंसान है। सुन लिया ना? तो अब सुन तो लो, पूरा सुन लो। अब इन लोगों को तुम कह रहे हो इमाम अपने हक में अपने लुक से पेश करते हैं, तो अब मुझे ये बताओ, अब ये जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, ये बुखारी मुस्लिम से और कुरान शरीफ से निकाह के, रोजे के, नमाज के, हज के, ज़कात के सारे मसाइल कैसे निकालें? सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, फर्ज, वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, हलाल और हराम, ये सब कैसे निकालें वो जरा बताओ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपसे कि एक शख्स जो खेती किसानी करता है वो बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको, है ना। अब ये बताएं कि उसको हिदायत कैसे मिलेगी? मैं वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम तो ये कह रहे हो कि इमामों को छोड़ के, वहाबियों का क्या कहना है तुम्हारा? इमाम को छोड़ के डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसले मसाइल निकालो। मेरी बात सुनो, मैंने दूसरी बात कही कि मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। मेरा क्या काम है मालूम है? यही मुसीबत होती है। सुन तो लो, सुन लो पहले। लिस्ट बता दी, उसका जवाब तो सुनी नहीं। आप सुनने की थोड़ी सी मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूँ जवाब देना, चूंकि आप वहाबी है। सुन तो लो पूरी बात। हाँ सुन रहा हूँ, रुको। आप वहाबी है, हाँ आप वहाबी है, तो 1% भी इमाम का हवाला नहीं देंगे आप, क्योंकि इमाम की तो आप तकफीर करते हैं। कुरान और हदीस से बताओ कैसे उसको हिदायत मिले, उस शख्स को। किसी को काफिर नहीं कहते। काफिर का नहीं पूछ रहा मैं, वो शख्स कैसे मसले निकालेगा कुरान और हदीस में से, ये बताओ। और कमाल करते हो, पहले और सवाल पूछते हो फिर दूसरा सवाल। अरे शुरू से यही पूछ रहा हूँ मैं। पहले मेरे भाई उसका क्लियर करो, किसान का। हाँ वही पूछ रहा हूँ, वो कैसे मसले निकालेगा वो। मैंने ये पूछा, सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने एक जो आप बता रहा है ना कि किसान कैसे करेगा, तो ये बताएंगे हिदायत कौन देता है और उसको हिदायत मिलती कैसे? हाँ हिदायत अल्लाह देता है, मिलती है कुरान और हदीस से, और कुरान और हदीस के मानने वाले जो हैं उसको सही से समझाने वाले वो हैं, उनकी बातें सुनने से हिदायत मिलती है, मुहद्दिसीन के रास्ते पर चलने से हिदायत मिलती है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अमाल का दारोमदार नियत से है। अब बंदे की नियत देखी जाएगी कि ये किस नियत से दीन को फॉलो करता है। फिर नहीं समझे फॉलो करता है। सुनो भैया, क्या करता है वो, नहीं समझे। सवाल कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हो। सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो इंसान कैसे कुरान और हदीस से मसले मसाइल निकालेगा, क्योंकि मुहद्दिसीन के रास्ते पे चलने को तुम वहाबी शिर्क कहते हो, तकलीद करने को शिर्क कहते हो। अब वो अकेला इंसान कुरान और हदीस से हिदायत कैसे निकाले? मुहद्दिसीन के रास्ते को कौन सा शिर्क कहता है कोई वहाबी? हाँ मैं बताता हूँ। नजीर हुसैन दहलवी ने अपनी किताब में लिखा है, वहाबियों के इमाम ने, कि मुहद्दिस की बात मानना तकलीद है। ठीक है, मुहद्दिस की बात मानना तकलीद है। और सनाउल्लाह मिरसरी ने अपनी फतावा सनाया में लिखा है कि गैर नबी की बात को बगैर दलील मानना तकलीद है। यानी कि जो नबी ना हो, चाहे वो सहाबी हो, चाहे मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, फकीह हो, कोई हो, उनके पास अगर कुरान और हदीस से अगर दलील नहीं है तो उनकी बात मानना भी तकलीद है, और मुहद्दिस की बात मानना भी तकलीद है। तो अब ये सारी मुहद्दिसीन की बातें मानना है तकलीद, और तकलीद ही को शिर्क कहते हैं वहाबी। जाकिर नाइक हराम कहता है, और तालिबुर रहमान शिर्क कहता है, और भी लोग हैं जो बिदअत हराम कहते हैं। बहरहाल वहाबी यही सब करते हैं। तो अब वो जो इंसान खेती किसानी कर रहा है, वो डायरेक्ट कुरान और हदीस से कैसे ये सारे मसाले निकाले, बगैर तकलीद करे, बगैर मुहद्दिसीन की बात माने, मैं वो पूछ रहा हूँ, वरना वो तो मुशरिक हो जाएगा। अब वो किसान क्या करेगा फिर? क्या करेगा? वो तो इसके सामने तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे वही करेगा। हाँ वही, वो अमल कैसे करेगा? कैसे चलाने वाला कौन है असल में? कौन है? उसको रोजी देने वाला कौन है? उसको पैदा किसने? अल्लाह है ना। उसको हिदायत कौन देता है? अल्लाह। उसको सीधे रास्ते पे कौन चलाएगा? अल्लाह चलाता है।
अगर उसकी नीयत अच्छी हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अमाल का दारोमदार नीयत से है। फिर आप कोई और से मसले पे जा रहे हैं। अल्लाह की कुदरत की बात नहीं चल रही है, सुनो, अमन भाई, अरे अल्लाह की कुदरत की बात नहीं चल रही है। मैंने कहा कि वो मसले मसाइल कैसे निकालेगा कुरान और हदीस से। आपकी नजरों में आप दीन किसका फॉलो करते हैं, फिर शरीयत किसकी? मैंने सुनो इमरान भाई आप सवाल कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हो। मैंने सवाल पूछा है कि वो जो खेती किसानी कर रहा है वो कुरान और हदीस से कैसे मसले निकाले। अगर वो मुहद्दिसीन की मान रहा है तो मुशरिक हो जाता है, या किसी इमाम की किताब पढ़ रहा है तो मुशरिक हो जाता है। वही आओ, हाँ वो कैसे मसले निकाले वही बताओ। डायरेक्ट ज्ञान का मुहद्दिस बनाने के चक्कर में हो, ठीक है? हाँ तो बताओ वो कैसे मसले निकाले। उसको डायरेक्ट फैसला करने वाला क्यों बना रहा हूँ मेरे भाई? हाँ तो ये तो वहाबी बना रहे हैं, उसको डायरेक्ट फैसला करने वाला तो वहाबी बना रहे हैं। मेरे भाई अरे वहाबियों का कहना है कि डायरेक्ट कुरान और हदीस में से निकालो मसले। आप जो ना असल में आप क्या कह रहे हो कि आप मैं नहीं, उसको अपने खाते में मैं नहीं, सुनो पहले मैं ये कह रहा, वहाबी कह रहे हैं कि डायरेक्ट कुरान और हदीस से निकालो, तो मैं वही तुमसे पूछ रहा हूँ वो कैसे निकाले कुरान और हदीस से सारे मसले। वहाबी उसको आजाद कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं खुला। वहाबी की कोई अपनी बात जो है ना, जो उसने अपने मन से की है, वो कुरान हदीस नहीं होती। हाँ तो ये तो इसका मतलब वहाबियों, तो इसका मतलब वहाबियों की हाँ तो उसकी बात नहीं मानी जाती, नहीं मानी जाएगी। यानी कि वहाबियों ने गलत कहा है तकलीद को शिर्क कह के। उसूल है बिल्कुल गलत। अच्छा, यानी कि तकलीद करना चाहिए, आपको तकलीद नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो वहाबी तालिब रहमान जाकिर नायक और पूरी टीम वहाबियों की छोटी सी टीम है, छोटा सा फिरका है, ये सारे लोग शिर्क बिदअत हराम कह रहे हैं तकलीद को, ये गलत कह रहे हैं, यही तो कह रहे हो आप? चलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। राउफ भाई को अपने अव्वल नहीं रखेगा, हाँ गलती देगा ना। देखे राउफ भाई, ये अहले हदीस थे तो इन्होंने चलिए ठीक है, इस मसले में अहले हदीसों को वहाबियों को गलत साबित कर दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ। वो तो खुद गलत साबित हो जाएंगे ना। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर आप कहना चाह रहे हैं ना तो इसका ना आप खुद भुगतेंगे, मैं थोड़ी नहीं भुगतूंगा या आपकी जमात थोड़ी नहीं भुगतेगी। हाँ बहुत सही बहुत सही। वो अहले हदीस जो है वहाबी वो गलत कर रहे हैं, बहुत सही, ये बहुत बढ़िया। बताएं ये किसने बनाया है? कौन सा? खराब है जमात के अंदर तो पूरी जमात खराब हो जाएगी। पूरी जमात का ही ये कहना है भैया, वो जो वहाबी जो फिरका है पूरे फिरके का ये कहना है कि तकलीद शिर्क है, हराम है। भाई अब देखिए मजारों की सैकड़ों हजारों वीडियो मिल जाएंगी जो लोग बात सजदा करते हैं। हाँ तो इमाम नहीं करते ना, हो गई बात। हाँ सुने, जो मज़ारों पे सजदा करते हैं लोग, सुन तो लो, जो मज़ारों पे सजदा करते हैं वो आम लोग होते हैं, इमाम नहीं होते। अहले हदीसों के जो इमाम है वो लोग कह रहे हैं तकलीद शिर्क है, हराम है, ठीक है। तो ये तमाम फिरका अहले हदीस कह रहा है। वो कौन से मतलब से ताल्लुक रखते हैं, ये तो आप किसको मानते हैं? अच्छी तरीके से वो कौन से मतलब को फॉलो करते हैं? वो वहाबी को फॉलो करते हैं जो मज़ारों पे सजदा करते हैं। मज़ारों पे जो सजदा करते हैं वो, सुनो, मज़ारों पे सजदा करने वाले गैर मुस्लिम भी होते हैं, वहाबी भी होते हैं ताकि सुन्नियों को बदनाम करा जाए, और कुछ सुन्नी भी होते हैं जो कम इल्मी की वजह से कर देते हैं। अब सवाल ये है कि पूरी वहाबी है जो तकलीद को शिर्क हराम कह रही थी, आपने अहले हदीस होके उन सब पे ये फतवा लगा दिया कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्यों फतवा लगाऊंगा भाई? हाँ भाई, क्या मैं फतवा लगा रहा हूँ? फतवा में कुछ फतवा तो वो फंस गए ना, वहाबी फंस गए ना, फिर दूसरे का गुनाह है ना, आपका गुनाह मेरे सर नहीं बन रहा है अल्लाह ताला। अरे भाई वहाबी फंस गए ना, फिर फंस तो गए वहाबी। मगर अगर हाँ अगर आप कोई गुनाह करते हैं ना तो उसका हर्जाना मैं नहीं दूंगा ऊपर। और अगर आप मुझसे वो गुनाह करवा रहे हैं तो वो
ठीक है, आप मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, सुने, मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर किसी ने कोई गलत काम राइज कर दिया तो करने वालों का भी गुनाह उस शख्स पे है जिसने राइज करा। तो अहले हदीसों की बातों में आके जो जो गलत काम करेगा उसका गुनाह अहले हदीसों पे भी है, और जो वो खुद कर रहा है उसका भी अहले हदीसों पे है। तो ये तो उसूल है ना, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बनाए, तो सबके हाँ, तो जो लोग वहाबियों की बातों में आके तकलीद को शिर्क हराम कह रहे हैं वो सब गलत है। अब देवबंदियों में भी कलमा पढ़वाया है ना, और बरेलियों में भी कलमा पढ़वाया। बरेलवियों ने कहाँ कलमा पढ़वाया भैया? हेलो, उसका दिफा भी करते हैं। कहाँ पढ़वाया कलमा? दिफा भी करते हैं, किताबें भी छापते हैं। कहाँ है बताओ तो सही। अच्छा, कहाँ है? चिश्ती रसूल अल्लाह। अच्छा, अब एक सुनो, अब एक दलील मुझे दो या कोई वीडियो मुझे दिखाओ कि किसी सुन्नी ने चिश्ती रसूल अल्लाह पढ़ा हो। सुन्नी ने तो वो कौन लोग थे वो कौन पढ़ रहे थे बताओ ना। जो चिश्ती रसूल अल्लाह पढ़ रहे थे और जो पढ़वा रहे थे। चिश्ती रसूल अल्लाह कौन पढ़ रहा था, कौन पढ़वा रहा था बताओ। वो किसकी किताबें हैं ये भी तो। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कौन पढ़ रहा था, कौन पढ़वा रहा था, वही तो बताओ। सुन्नियों की किताबों में सस्ता है, जो सुन्नी कहते हैं ना अपने आप को, उन्हीं की। हाँ, तो सुन्नी तो ये कह रहे हैं कि वो चिश्ती रसूल अल्लाह उसमें अलग से एडिशन कर दिया गया, गलत है। नहीं, अगर आप इसको हराम कहते हैं तो भाई वो हराम हो जाएगा ना आपके लिए। नहीं, हमने कहा सुन्नी तो ये कहते हैं, सुन्नी ये तो सही कहते हैं, जो भी दिखा करेगा। ठीक है, अब आप सुनो, उसके बारे में सुन्नी ये कहते, अब हो गई ना बात, अब मेरी तो सुन लो, जवाब सुन लो। उसके बारे में सुन्नी, उसके अरे सुन लो, सुन्नी उसके बारे में सुन्नी सुनाओ। अच्छा, चिश्ती रसूल अल्लाह या थानवी रसूल अल्लाह ये कहना कुफ्र है या नहीं है? हाँ, अब सुनो, चिश्ती रसूल अल्लाह नहीं छोड़ो, चिश्ती सुनो, पहले सुनो। हाँ, जो थानवी रसूल अल्लाह कहेगा, जो चिश्ती रसूल अल्लाह कहेगा कुफ्र है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप खामोशी से सुनो, आप खामोशी से सुनो, आप खामोशी से सुनो, आप खामोशी से सुनो। अब मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सुन्नी ये कहते हैं, क्योंकि चिश्ती रसूल अल्लाह ना हम कहते हैं ना किसी सुन्नी ने कहा, ये किताब में जो वाकया लिखा हुआ है ये गलत किसी ने इसमें ऐड कर दिया गया है किताब में, इसको हम नहीं मानते। ये है सुन्नियों का अकीदा। छाप क्यों रहे? आप मुझे ये बताओ, वो किताब तुम्हारी है कि नहीं है जिसमें चिश्ती रसूल अल्लाह लिखा है? हमारी नहीं है ना। चलो अच्छा, तुम्हारी किताब कौन सी? आप सुनो, रोक तो लो भैया, रुक लो। अब मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी किताब कौन सी है? हमारी तो कुरान और हदीस है। कुरान हदीस है ना। अच्छा, इमाम हाकिम की जो किताब है हाकिम अल मुस्तदरक, वो है तुम्हारी? बिल्कुल है। उसके अंदर लिखा हुआ है, सुनो, उसके अंदर हदीस लिखी हुई है कि जब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पर्दा कर गए तो उनके मजार पे तमाम लोग जाके दुआ करते थे। पर्दा कर गए लिखा हुआ उसमें? हाँ, उनके दुनिया से जाने के बाद उनके मजार पे जाके तमाम लोग दुआएं करते थे और दुआ कबूल होती थी। ये हाकिम अल मुस्तदरक में लिखा हुआ है। अच्छा, मुसन्नफ वो इमाम हाकिम की ये जो हाकिम अल मुस्तदरक है, इसमें लिखा हुआ है। और तुम वहाबी कहते हो कि ये शिरक है, यानी कि इमाम हाकिम मुशरिक होगा तुम्हारे बकौल। और नहीं तो जो वहाबी रिवायत है उसमें नकल की है। अब वो छोड़ो, अब सही गलत छोड़ो। अभी तो तुम कह रहे हो ना कि किताब में चिश्ती रसूल अल्लाह लिखा है। एक मिनट, अभी तुम क्या कह रहे थे? अरे खामोश रह लिया करो भाई, खामोश रह लिया करो। अभी तुम क्या कह रहे थे? अरे खामोश रहो ना भाई। अभी तुम कह रहे थे कि किताब के अंदर चिश्ती, सुनो, अभी तुम जेहालत मत करो यहाँ पर, जेहालत मत करो यहाँ पर। अभी तुम कह रहे थे चिश्ती रसूल अल्लाह किताब में लिखा है तो ये गलत है, लिखा ही क्यों गया? अब हाकिम अल मुस्तदरक में ये जो मजार पे जाके दुआ करने वाला वाकया लिखा हुआ है ना, तो अब इमाम हाकिम को भी मुशरिक बोलो। और जिन वहाबियों ने दारुस्सलाम सऊदी से ये किताब छापी है उन सारे वहाबियों को भी मुशरिक बोलो। अरे जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम, एक मिनट,
एक मिनट इबारत मौजूद है। दलील पर बता रहा हूँ। हाँ मेरे पास दलील मौजूद है ना, अरे दलील मौजूद है मेरे पास, सुनो दो दलील दूं। हाँ अब सुनो, मैं इनको हजरत को सेंड हाँ ये लो, मैं अभी दलील दे देता हूँ। किताब में तो लिखी है ना, एक मिनट, किताब में तो लिखी है ना, जैसे चिश्ती रसूल अल्लाह लिखा वैसे ये भी लिखी हुई है। तो इमाम हाकिम को और तमाम वहाबी जो इसे छाप रहे हैं सबको मुशरिक कौन बोलेगा? अच्छा एक बात बताओ, हाँ बुखारी शरीफ ये बताओ पहले, ये बताओ पहले, ये इमाम हाकिम को मुशरिक कौन बोलेगा? अभी चिश्ती रसूल अल्लाह कह रहे थे तुम लिखा हुआ क्यों है, पर अभी जो हाकिम अल मुस्तदरक में ये जो हदीस लिखी है ये मुशरिक कौन बोलेगा? अभी बरेलवियों में बड़ी जबान चला रहे थे तुम यार, कमाल कर रहे हो। कमाल। अच्छा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अल-अदबुल मुफरद के बारे में जानते हो? सुनो, मुफरद जो है वो बुखारी और मुस्लिम का दर्जा रखती है क्या? अरे किताब में तो लिखी है ना, सुन्नियों की तो किताब है, हदीसी की तो किताब है। तो वो जो पत्थर की लकीर हो जाएगी। हाँ अब आई ना बात, अब आई ना बहावन पहाड़ के नीचे। अब सुनो पहले, अब मैं ये कह रहा हूँ, अभी क्यों कह दिया तुमने कि किताब में लिखा है चिश्ती रसूल अल्लाह, तो लिखा क्यों गया? अब तुम खुद ही इस बात को कह रहे हो किताब में लिखने से मोतबर नहीं हो जाएगी, मानने से होगी। अब खुद ही उसका जवाब दे रहे हो। छापने वाले बरेलवी हैं, ये छापने वाले वहाबी हैं, ये हाकिम अल मुस्तदरक को छापने वाले वहाबी हैं। सऊदी अरब दारुस्सलाम से छप रही है हाकिम अल मुस्तदरक, उनके मुनाजरे हैं। हाँ मुनाजर सुनो, ये हाकिम अल मुस्तदरक सऊदी अरब दारुस्सलाम से छप रही है, इसका दिफा भी कर रहे हैं वहाबी कि सऊदी ये इमाम हाकिम की किताब बढ़िया किताब है, हदीस की किताब है। तो सारे वहाबी मुशरिक हो गए, इमाम हाकिम को भी मुशरिक बोलो। चलो अच्छा इमाम बुखारी की अल-अदबुल मुफरद के बारे में जानते हो? सुनो पहले, कलमा अगर पढ़ाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इमाम बुखारी की आपके लिए या शिर्क का मामला? सुनो तो पहले। अच्छा तो यानी कि वो अगर चलो कलमा पढ़ाने की बेस पे बरेलवी मुशरिक काफिर हो गए, तो इमाम हाकिम भी तो ये मजार पे भेजने की वजह से मुशरिक हो गए, और तमाम वहाबी भी जो इसको छाप रहा है, दोनों हुए ना मुशरिक, दोनों हुए ना, काफिर और मुशरिक। अच्छा इमाम बुखारी की अल-अदबुल मुफरद को जानते हो? अल-अदबुल, अरे मेरा भाई छोड़ो, इसमें नकल भी है। हाँ तुम जब बरेलवी ये कहते हैं कि जब ये वाकया भी सही सनद से उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो तुम लोग बरेलवियों को क्यों परेशान करते हो फोन कर करके, जब वो ये कहते हैं कि इस वाकये से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, किताब में किसी ने ऐड कर दिया है। आज जो ये किताब थोप रहा हूँ मेरे ऊपर, तो ये सियासत में शामिल है। सियासत में जो किताब शामिल होती है वही ऑथेंटिक और मोतबर होती है, इसके अलावा कोई नहीं होती। ये कहाँ लिखा है? कोई बात ये कहाँ लिखा है भैया? तुम ये कह रहे हो जो अल्लाह के नबी की जो हदीस है, सुनो पहले, जो अल्लाह के नबी की हदीस है वो अल्लाह के नबी की बात तुम जब ही मानोगे जब सियासत में होगी। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये हाकिम अल मुस्तदरक की ये जो हदीस है, इसकी बेस पे इमाम हाकिम को तुम मुशरिक कहोगे, तमाम वहाबी जो इसे छाप रहे हैं दारुस्सलाम से छप रही है, मैं मुशरिक कहोगे। उसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जो आप के सर से ऊपर निकल जाएंगी। लिखी है ना, सर से ऊपर निकल जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, कुछ गलत नहीं लिखा है, सर से ऊपर निकल जाएंगी। के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है? क्या क्या लिखा हुआ है? के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है? तो फिर इसको भी मानो ना, चिश्ती रसूलुल्लाह को जैसे तुम कह रहे हो कि किताब में लिखा हुआ है, तो वैसे ये सब बातें भी लिखी है, इनको भी मानो ना। लिखी हुई है उसके अंदर। कौन सी झूठी रिवायत लिखी है भैया? झूठी रिवायतें। हाँ तो ये वाकया चिश्ती रसूलुल्लाह भी झूठा वाकया लिखा हुआ है, तो ये तो आप लोग छाप रहे हो ना। हाँ तो ये भी तो तुम लोग छाप रहे हो ना, हाकिम अल मुस्तदरक में ये भी तो आप लोग छाप रहे हो वहाँ भी। ये कौन, ये क्या हम छाप रहे हैं? ये तो आप लोग छाप रहे हो। कौन वजाहत करेगा? ठीक है, कोई वजाहत नहीं कर सकता वहाँ भी इसकी। जिसने भी कलमा पढ़वाया तो कुफ्र किया। अच्छा और ये इमाम हाकिम ने ये जो मजार पे बता रहे हैं कि सहाबी जो थे इमाम अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के मजार पे जाके ये जो दुआ करते थे, ये भी सब शिर्क कर रहे थे, इसका मतलब सहाबा। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक ही बात कर मारे बिल्कुल मारेंगे, ये किताब में लिखी हुई है, किताब में लिखी हुई है हाकिम अल मुस्तदरक में।
सुनो तो सही। अब हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मैं ढेर सारी ऐसी रिवायतें दिखा दूंगा उसी में से निकाल के। हाँ ठीक है, तो आप उसको मान लोगे? हाँ चलो अच्छा, यानी तुम ये कह रहे हो हर बात नहीं मानी जाएगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ झूठी रिवायतों में, तो आप उसको मान लोगे? यानी कि उसको नहीं मानोगे, चिश्ती रसूल अल्लाह को जबरिया मानोगे? तो भाई जब सही है ही ये तो दोगलापन क्यों कर रहे हो तुम? मतलब उस किताब में झूठी अगर रिवायत आ गई है, किताब वो तो मुहद्दिस थोड़ी नहीं था कोई। अच्छा तो मुहद्दिस शिर्क लिख दे तो जायज है? मुहद्दिस जो है, सुनो पहले, मुहद्दिस अगर किताब में शिर्क लिख दे तो शिर्क नहीं होगा? तो ये हाँ ए भैया दोगलापन क्यों कर रहे हो? अरे थोड़ा थाम भैया, थोड़ा आराम ले लो। दोगलापन क्यों कर रहे हो? मुहद्दिस अगर शिर्क लिख दे किताबों में शिर्क नहीं होगा, अल्लाह के वली लिख दे तो शिर्क हो जाएगा। क्यों भाई? क्या मतलब? यानी इमाम हाकिम ने अगर ये शिरकिया वाकया, तुम्हारे बकौल जो ये वाकया शिरकिया है मजार पे जाने वाला, तो वहाबियों के नजदीक शिरकिया है, तो ये लिख दे तो शिरक नहीं होगा, मुहद्दिस ने लिख दिया। और अल्लाह के वली ने लिख दिया, अगर बाबा फरीद गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिया तो शिरक हो जाएगा। इमाम क्यों? क्या लिखा? मजार पे जाना शिरक है। उन्होंने लिखा है कि अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मजार पे जाके लोग दुआएं करते थे, दुआएं, जैसे हम नबी अलैहिस्सलाम की मजार पे जाके दुआ करते हैं, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मजार पे जाके सहाबा दुआएं करते थे। ये लिखा उन्होंने हदीस में। तो क्या उनको औलादे मानते थे क्या? अब दुआ में तो सब कुछ मांगा जाता है, कुछ भी मांगा जाता है। अब वो भाई दुआ तो करते थे ना, दुआ तो करते थे ना, अब दुआ में तो कुछ भी मांगा जाता है। दुआ करते थे, हाँ हाँ वही करते थे, उनके कब्र अनवर पे जाके दुआ करते थे। दुआ में तो सब कुछ किया जाता है, कुछ भी करते थे। दुआ तो दुआ होती है। तो फिर वो आपको बताना चाहिए कि क्या दुआ करते थे साहबा? अरे भाई दुआ कह दिया ना उन्होंने, दुआ करते थे, तो दुआ में तो सभी चीज आती है। अभी जब मजार का जिक्र है वहाँ पे तो चादरें भी चढ़ती होंगी। जब मजार सुनो पहले, जब मजार का जिक्र है ना, मजार का, मजार पे जाके दुआ करते थे। हाँ मजार के चादर को कहते हैं, मजार के चादर को कहते हैं, कब्र ही को तो मजार कहते हैं। कब्र मजार थी है। अरे कब्र ही को तो मजार कहते हैं, मजार कोई चादर को थोड़ी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम कब्रिस्तान जाया करो जो तुम्हें आखिरत की याद आए। हाँ बताएं। हाँ तो कब्रिस्तान किसको कहते हैं? क्या है तो उसे कहते हैं, किसे? बहुत सारी कब्रें होती हैं। अच्छा एक कब्र को क्या कहेंगे? एक कब्र को क्या कहेंगे? एक कब्र को सुनो पहले, एक कब्र को, ये भैया ये औरतें आना नाच गाना ये मत जोड़ो। ये औरतें और नाच गाना का नाम ले लेके तुम लोग सुन्नियों को जो गुमराह कर रहे हो ना, औरतें नाच गाना ये सब नाम ले लेके जो तुम कौम को गुमराह कर रहे हो, ये छोड़ो, इसको हम गलती कहते हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ सुनो, टाइम पहले ये कहा था इमरान भाई, आपने थोड़े टाइम से पहले ये कहा था कि आला हजरत का खुद मैंने फतवा पढ़ा है कि उन्होंने मज़ारात को लेकर के बड़ी सख्त ताकीद अपनी किताबों में। अरे तो ये दोगलापन क्यों कर रहे हो? क्यों औरतें और मजार का नाम ले रहे हो नाच गाने का? क्यों दोगलापन क्यों कर रहे हो? अभी औरतों का मजार और नाच गाने का नाम क्यों ले रहे हो? मैं बोलता नहीं हूँ कभी डिबेट के बीच में, लेकिन मेरे को बोलना पड़ा कि आप राउफ भाई सुनो, राउफ भाई मजे की बात सुनो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-अदबुल मुफरद, उन्होंने अपनी किताब में हदीस लिखी कि जब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का पाँव सुन हो गया तो उन्होंने पुकारा या रसूल अल्लाह, और उनका पाँव सही हो गया। तो बोले इमाम बुखारी भी मुशरिक थे। तो ये सब इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम हाकिम, इमाम बहकी अपनी शोएबुल ईमान में ये लिख रहे हैं कि फरिश्तों से मदद मांगना जायज़ है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपनी उनके बेटे अपने वालिद यानी इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे वालिद ने जब वो फंस गए मुसीबत में तो उन्होंने फरिश्तों को पुकारा, यानी अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। इमाम कस्तलानी अपनी किताब, उनकी जो किताब है उसके अंदर वो लिख रहे हैं, सारी दलीलें मौजूद है कि जब तुम नबी अलैहिस्सलाम के रोजे पे पहुंचो तो गिड़गिड़ा के मदद मांगो। अल्लामा नूरुद्दीन शमहूदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वफाउल वफा में लिख रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैं गया मदद मांगने और मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे कमरे की चाबी नहीं मिल रही है, तो आप लिहाजा मुझे आपसे चाहिए। तो वो मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चाबी मिल गई। वो अपनी किताब वफाउल वफा में लिख रही है। सारे मुहद्दिस
امام رملی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوا میں ذکر کر رہے ہیں کہ سلف صالحین کی مزار پہ مدد کے لیے پکارنا جائز ہے. یہ سارے محدثین تو یہ لکھ رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ جب مجھے وسیلے کی یعنی مصیبت کی یا کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت ہوتی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میری مصیبت دور ہو جاتی. یہ سارے لوگ مشرک تھے، یہ مشرک تھے نا. ارے یہ مشرک تھے نا، یہ بتاؤ نا، یہ سارے محدث مشرک تھے، تم خالی ایمان والے ہو. آپ تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سارے، میں ثابت نہیں کر رہا ہوں، جن کی کتابیں ہیں نا حدیثوں کی وہ یہ ان کے عمل بتا رہا ہوں میں. یہ سارے مشرک تمہارے مقصد. آپ یہی تو کہہ رہے ہیں نا. ہاں قبروں سے نہیں، قبروں سے کون مدد مانگتا ہے؟ جو قبروں کے اندر ہیں ان سے مدد مانگتے تھے. ہاں وہ ایک ہی بات ہے میرے بھائی، ایک ہی بات نہیں ہے. اچھا تم اپنے باپ سے مدد مانگتے ہو، تمہارے باپ تمہارے گھر میں ہوتے ہیں، تم گھر سے مدد مانگ رہے ہو کہ اپنے باپ سے مانگ رہے ہو؟ باپ سے مانگ رہے ہو نا، گھر سے تھوڑی مانگ رہے ہو. تو مدد کر سکتا ہے اللہ نے. تو وہ بھی تو قبر کے اندر زندہ ہے نا، قبر کے اندر. قبر والا کہہ کے اللہ کے رسول کی توہین نہ کرو. ہو وہابی بھیا سنو پہلے، قبر والا کر کے سنو میری بات. میں بتاتا ہوں نا آپ کو، میں کیا کہہ رہا ہوں نا، قبر کہہ کے سنو، قبر کہہ کے اللہ کے رسول کی توہین مت کرو. حوصلہ رکھو میرے بھائی. سناؤ. دیکھو قبر سے ہم دونوں چلتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں پر ارے قبر سے کون مانگتا ہے بھیا؟ قبر سے کون مانگتا ہے؟ قبر کا نام کیوں لے رہے ہو؟ مانگتے ہو نا، جس سے نہیں اللہ کے نبی کا نام لو. اللہ کے نبی کا نام لینا نہیں آ رہا تمہیں؟ دونوں بھائی اللہ کے نبی کا نام لو صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اگر وہ جواب دے دے تو میری گردن اتار دینا. یعنی وہ جواب نہیں دیتے بھائی، جب جو شخص جواب یعنی وہ جواب نہیں دیتے، مدد کیسے کر سکتا ہے یہ بتاؤ. یعنی کہ جن کو تم سلام کرو گے، سنو حدیث میں آیا ہے کہ قبرستان میں جب تم جاؤ تو سلام کرو. یعنی کہ وہ غلط بیان کیا گیا کہ قبرستان میں جا کے سلام کرنے کو غلط ہے. ابھی تم نے کیا کہا؟ ابھی تم نے کہا کہ اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو میری گردن اتار دینا، اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ تم سلام کرو. معاذ اللہ استغفر اللہ. کیسے وہابی ہو تم؟ تو حدیث کو ہی ٹھکرا رہے ہو. بھائی وہابی کی بات ہے، تم وہابی کی کیسے چلے جا رہے ہو؟ کیسے وہابی ہو تم؟ اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں سنو پہلے. جن کی کتابیں پڑھ کے تم اللہ کے رسول کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، ان محدثین کو تم مشرک کہہ رہے ہو. امام بخاری، امام حاکم، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ سب کو مشرک کہہ رہے ہو تم. اچھا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہم نے ان کی کتابوں میں لکھ دیا. لو میں تمہیں دلیل دیتا ہوں. رؤوف بھائی نے دلیل دو، میں دلیل دیتا ہوں. پڑھو. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. ہاں یہ دلیل پہلے اس کو، یہ دلیل ان کو دلیل دو. عمران بھائی اگر یہ چیزیں سب ثابت ہوتی ہیں، بخاری سنو، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، 70 صحابہ کو دھوکے سے لے جاتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں. بھیا یہ مت پڑھو حدیث ہے. یہ منافق جو ہوتے ہیں نا، ملحد. سنو پہلے، یہ حدیث مت پڑھا کرو یہاں پر. جو یہ حدیث ملحد پیش کرتے ہیں، ملحد جو ہوتے ہیں نا، جو میرے بھائی سنو پہلے، سنو، ہمت رکھو دوسرے کی سننے کی، ٹھیک ہے نا. یہ جو تم حدیث پیش کر رہے ہو یہ ملحد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے اللہ نے ان صحابہ کو کیوں نہیں بچایا. ہاں ٹھیک ہے. حدیث مجھے معلوم ہے. ان کو دھوکے سے لے گا یار، بات سنو گے نہیں؟ ہاں سناؤ. دھوکے سے لے گا، 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. جی ٹھیک ہے. اب وہ 70 میں سے کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو گیا، ہم تجھ سے راضی ہو گئے. یہ خبر ہمارے نبی تک پہنچا دے. اچھا. اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں اس ٹائم موجود تھے. جی. چاہتے تو صحابہ کیا کہتے کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں کو یہ شہید کر رہے ہیں، آگے ہمیں بچا لیجیے، ہماری مدد کریں. اچھا. تو اس چیز کا کیا نکالیں گے اب یہ بتائیں. ٹھیک ہے نکال لیا نا، ہو گئی نا. اب پہلی بات، اب اس کا جواب سنو. اب اس کا جواب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی شرح بخاری شریف کی، اس حدیث کی شرح جس نے کی ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. پوری سنو پہلے، سنو حدیثوں کی ہی کتاب ہے. سنو پہلے،
इसकी शरह करने वाले अब इन्हें खामोश करो रहू भाई, इनकी सुनी ना मैंने। पहले इसकी शरह सुन लो फिर आपकी। अरे हम एक जवाब नहीं देते, हमारे पास 10 जवाब होते हैं एक एक एतराज के भैया। अपने लुकमा गुजरते हैं मेरे भाई। हाँ अब इनको खामोश करो रहू भाई। एक मिनट जो अभी मैंने बताई है ना, आप उसका जवाब दो पहले। हाँ उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? हाँ अब मैं बता रहा हूँ ना, खामोश रहो। अल्लाह से क्यों बुलवाया कि या अल्लाह हमारी खबर नबी तक पहुँचा दे? हाँ हो गई ना, हो गई ना, हो गई ना। सहाबा क्या अब सुन लो ना, पता नहीं था। सुन लो ना भैया, बात रखना दोबारा में आपकी बात रखना आप इमरान भाई। सुन लो हाँ ठीक है। अब इसकी शरह, इस सही बुखारी की शरह करने वाले इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी शरह सबसे ज्यादा मोतबर मानी जाती है, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब में आके कि तुम फला वली की मजार पे जाओ और तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। इनसे इन्हें रोको, पहले रोको, इन्हें रोको पहले। इमरान भाई मेरी बात सुने आप। देखिए हमें जो हदीस समझनी है ना, वो आपसे नहीं समझनी, हमें मुहद्दिस से समझना है। हाँ वहाबी से नहीं समझनी। हाँ अब सुनो पहले। हाँ अब सुनो। अब ये शरह करने वाले इमाम इब्न, अरे सुन लो ना भैया, अरे इमरान भाई तुम जैसे लोगों को हक चाहिए ही नहीं होता है। नहीं समझ रहे तो हाँ अब खामोशी से सुनो। अब जो सही बुखारी की शरह लिख रहे हैं मुहद्दिस हैं, वो तो इस अमल को जायज कह रहे हैं, और ये जो वहाबी है 1400 साल के बाद आके कह रहे हैं कि इस हदीस के मुताबिक ये रसूलुल्लाह को पुकारना शिरक है। यानी इब्ने हजर अस्कलानी जो शरह कर रहे हैं बुखारी शरीफ की, वो मुशरिक हो गए इन वहाबियों के बकौल, जिनको अलिफ से बे नहीं आता है। ठीक है, शरह करने वाले मुहद्दिस मुशरिक हो गए। अब इस हदीस का जवाब ये है कि इस हदीस को पेश करके जो मुल्हिद होते हैं, मुल्हिद, ठीक है, वो मुल्हिद कहते हैं कि देखो इतने तमाम सहाबा शहीद हो गए, अल्लाह ने उन्हें क्यों नहीं बचाया। तो अब इसका वहाबी जो जवाब देते हैं वही जवाब हमारा है, यानी कि वहाबी जो जवाब देंगे कि अल्लाह ने इस वजह से नहीं बचाया, हम भी यही कहते हैं रसूलुल्लाह को इस वजह से नहीं बचाया। सुनो पहले सुनो। अब रही बात, यार ये भूटान को लगा रहा हूँ साहब उधर क्या अभी आपने क्या कहा? मैं नहीं कहा, मुल्हिद जो होते हैं जो अल्लाह को नहीं, खामोश रहो, खामोश रहो, मुल्हिद जो होते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, वहाबी को कह रहा हूँ, मैंने कहा वहाबी होता है जो मुहद्दिसीन को मुशरिक कहता है। ये देखो पहले, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, पगला गए हैं, मुशरिक नहीं कहेंगे, बीच बीच में बोल रहे हैं। इन वहाबियों को जानते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबसे पहली बात यह है कि ये तो नहीं सुनेंगे। सहाबा ने कहा कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को हमारे इसकी खबर कर दे। सहाबा ने अल्लाह को क्यों नहीं पुकारा? क्या सहाबा का अकीदा ये था कि अल्लाह मदद नहीं कर सकता? भाई सहाबा ने तो अल्लाह को भी नहीं पुकारा अल्लाह हमारी मदद कर दे। रऊफ भाई, हदीस में ये अल्फाज है ही नहीं कि सहाबा ने कहा अल्लाह मेरी मदद कर, तो सहाबा ने तो अल्लाह को भी नहीं पुकारा, तो ये मदद नहीं होती है तो और क्या होता है? अल्लाह से भी तो मदद नहीं मांगी, यानी कि अल्लाह से भी मदद मांगने को वो नाजायज समझते थे। क्या है मदद? सहाबा ने कहा अल्लाह हमें इन मुनाफिकों से बचा, कहाँ लिखा है? अल्लाह कैसे खबर पहुँचाता? हाँ तो ये तो दूसरी मदद है। ये तो हमारा भी अकीदा है, जब हम रसूल अल्लाह को पुकारते हैं तो वो हमारी अल्लाह ही पहुँचाता है उन तक, ये तो हमारा भी अकीदा है। बिल्कुल सही बात। क्या तो भाई हदीस पर ही है हमारा अकीदा। सहाबा ने कहा अल्लाह हमारी बात नबी तक पहुंचा दे, हम भी यही अकीदा रखे हुए हैं कि अल्लाह ही पहुंचाता है नबी तक। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा उस तक खबर पहुंचाएगा। हाँ तो अल्लाह ही तो पहुंचाता है भाई। मैं अल्लाह तक खबर पहुंचाऊं, समझ रहे नहीं? अरे तो भाई अल्लाह ही तो अल्लाह पहुंचाता। आप सब छोड़ो, ये हदीस का हो गया जवाब। नबी अल्लाह तक पैगाम। देखो राउत भाई, इनके बस की बात रही नहीं, क्योंकि इन लोग को मालूम है कि तमाम मुहद्दिसीन को ये लोग मुशरिक बना रहे हैं। तमाम मुहद्दिसीन जो अल्लाह के रसूल से मदद मांगते थे उन सबको मुशरिक बना रहे हैं। हाँ, और सहाबा इकराम का जो अकीदा था अल्लाह पहुंचाता है रसूल अल्लाह तक, हमारा भी यही अकीदा है कि अल्लाह पहुंचाता है। भाई जब हम रसूल अल्लाह को पुकारते हैं तो बात अल्लाह ही पहुंचा रहा है, और सहाबा भी यही जानते हैं कि अल्लाह पहुंचा देगा। उस टाइम नबी मौजूद थे तो सहाबा ने क्यों नहीं पुकारा? तो अब भी तो नबी मौजूद है अपनी कब्र अनवर में, अब क्या नहीं है?
अरे तो क्या नहीं पुकारा, क्या नहीं पुकारा? तो अल्लाह को भी तो नहीं पुकारा उन्होंने, अल्लाह को भी तो नहीं पुकारा। आज क्यों पुकारते हैं सारे? अरे अल्लाह को भी तो नहीं पुकारा यार, अल्लाह को क्यों नहीं पुकारा? अल्लाह हाँ। तो कहा है उन्होंने, क्या कहा? हमारी जो ये खबर है जो हमें शहीद को किया गया, हाँ, अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगी? अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगी उनने? मैंने फिर वही बेचकर, अरे मदद क्यों नहीं मांगी? हदीस पढ़ना आपकी जब हाँ, तो अल्लाह से साहबा ने मदद क्यों नहीं मांगी? इसका मतलब अल्लाह से मदद मांगने को साहबा नाजायज समझते थे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे बकौल। और नहीं, ये है अहले हदीस नहीं है रऊफ भाई, ये अहले मतलब है। ये कौन लोग हैं? अहले मतलब। कहते हैं इस हदीस का ये मतलब निकाल लो, वो आयत का वो मतलब निकाल लो। भाई हम अहले मतलब नहीं है। जिन्होंने हदीसें हम तक पहुंचाई है, उन्होंने जो शरह की है, हम उसी से समझते हैं, मुहद्दिसीन से, कुरान हदीस को हम अपनी अकल से नहीं समझते। अहले मतलब नहीं है मुल्हिदों की तरह। अब सुनो रऊफ भाई, अब ये तमाम मुहद्दिसीन जो अल्लाह के रसूल से मदद मांग रहे हैं, ये ईमान वाले हैं कि मुशरिक है? ये बताओ। इमाम बुखारी मुशरिक थे या ईमान वाले थे? ये बताओ पहले। अरे बात सुनोगे नहीं? बात का जवाब दो। इमाम बुखारी, इमाम हाकिम, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये सारे लोग मुशरिक थे कि ईमान वाले थे? इन लोगों ने तो रसूल अल्लाह से मदद मांगी है, फरिश्तों से तक मांगी है। अरे यार, फिर वही शरह मत छोड़ो, इनका हुक्म बताओ कि ये लोग कौन है। तुम कहते हो बरेलवी गुमराह है, तो ये लोग कौन है? हाँ बिल्कुल भाई, बरेलवियों के लिए सारे फतवे ताक में समेट कर रखे हुए हो, मुहद्दिसीन के लिए कोई फतवा नहीं है? नहीं, उनके नहीं कौन फतवा लगाएगा ये बताओ। हाँ, तो उन्हीं के अमल पे बरेलवी है। बरेलवियों पे क्यों फतवा लगा रहा हूँ मुंह उठा के? बरेलवी भी तो वही कर रहा है जो मुहद्दिसीन ने किया है। तो उनको सुनो, उनके हाँ सुनाओ। तो बता रहा हूँ ना, तो आप तो सबको ही कह रहे हो। हाँ, उन सबने मदद मांगी है। मदद मांगते थे अल्लाह को छोड़कर, ये जितने अल्लाह को छोड़ के, यानी कि अल्लाह को छोड़ मत करो, यानी अल्लाह के नबी को तुम अल्लाह से छोटा हुआ समझ रहे हो। माज़अल्लाह, नहीं है भाई। ये देखो रऊफ भाई, ये अल्लाह के नबी को अल्लाह को छूटा हुआ समझ रहे हैं। ये देखो, अल्लाह के नबी को अल्लाह से छूटा हुआ समझ रहे हैं ये। माज़अल्लाह, यानी कि इन लोगों ने अल्लाह के नबी को अल्लाह से जुदा कर दिया है। यानी कि अल्लाह के नबी की मदद और है, या उनके फरमान और है, उनकी शरीयत और अल्लाह की और है। अपने लुक में मेरे मुंह में मत डालो। तुम्हारी बात ही तुम्हारे मुंह में डाल रहा हूँ। जो तुम बात बोल रहे, मेरे मुंह पर मत मारो। जो तुम बोल रहे हो उसी का मतलब बार बार बयान कर रहा हूँ मैं। यानी कि तुम अल्लाह के नबी को अल्लाह से छूटा हुआ समझ रहे हो। भाई, हम तो नबी अलैहिस्सलाम को, और मुहद्दिसीन ने भी जो नबी अलैहिस्सलाम को पुकारा है, हम जो पुकार रहे हैं, हम तो इसलिए पुकार रहे हो कि अल्लाह के सच्चे नबी है, मरगूब, सबसे बेहतर नबी है, सबसे महबूब है, इसलिए पुकार रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि वो अल्लाह से छूटे हुए हैं, हम उनको क्यों पुकारें? माज़अल्लाह, रऊफ भाई, हैरत की बात यह है कि अपने बाप को पुकारते हैं तो बाप को समझते हैं ये अल्लाह से जुड़ा हुआ है, और नबी अलैहिस्सलाम को कोई पुकार ले तो कहते हैं अल्लाह को छोड़ के नबी को पुकार लिया। नबी अलैहिस्सलाम को छूटा हुआ समझ लिया। मरने के बाद आप अपने बाप से मदद मांगने जरा। सूरह दुहा में सुनो, सूरह दुहा में आपका बाप मदद कर सकता है, अल्लाह के रसूल तो कर सकते हैं, अल्लाह के रसूल तो कर सकते हैं। तुम्हारा बाप अल्लाह के रसूल जैसा नहीं है। तुम्हारे बाप अल्लाह के रसूल जैसा नहीं है। जो तुम वहाँ भी मुंह उठा के जो दलीलें देने लगते हो ना अल्लाह का, मेरा बाप मरने के बाद मदद नहीं मांग सकता, मैं अपनी माँ से मदद नहीं मांग सकता। तुम्हारे अम्मा बाप अल्लाह के रसूल जैसे नहीं है। 10 सही बुखारी 10 हजरत उमर फारूक के वो शहाजादे ही हैं जो अल्लाह के रसूल को पुकार रहे हैं के फकाला या मोहम्मद ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल। कहाँ सुन हो गया? तो उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह को छोड़ के सुनो पहले, अल्लाह को छोड़ के उन्होंने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से क्यों दुआ करवाई? वो डायरेक्ट अल्लाह को क्यों नहीं पुकार रहे थे? अब हम ये कह रहे हैं कि हजरत उमर फारूक डायरेक्ट अल्लाह को क्यों नहीं पुकार रहे थे? अभी रऊफ भाई, ये वहाबियों के बकौल, वो डायरेक्ट अल्लाह को क्यों नहीं पुकार रहे थे? हाँ, एक मिनट इमरान भाई, हेलो,
भाई मेरे चाचा को अरे मैं इन वहाबियों से इतना तंग आ चुका हूँ, ये वहाबी इतना गुमराह कर रहा है लोगों को। इल्म 2 कौड़ी का नहीं होता इन लोग के पास, 2 पैसे का इल्म नहीं होता इन लोग के पास। रऊफ भाई सारी बातें छोड़ो, अब ये बताओ इमाम बुखारी मुशरिक है कि नहीं है, इमाम अहमद इब्न हम्बल मुशरिक है कि नहीं है? अगर ये मुशरिक है तो हम भी मुशरिक हैं, तो फिर बरेलवियों को मुशरिक क्यों कह रहे हो? तो क्यों नहीं है तुम्हारा दावा? ये तो अल्लाह के नबी को पुकार रहे हैं। कौन पुकार रहा है? इमाम बुखारी लिख रहे हैं किताब में अपनी। देखते चले जाओ तुम तो। अच्छा, यानी कि वो मुशरिक है ना, फिर तुम्हारे नजरिए से वो मुशरिक है ना? अब कोई बरेलवियों को मुशरिक कहे तो भी लाहौल पर लिया करो, उन्हीं के अमल पे है इमाम बुखारी के हम लोग भी। आपको भी ऐसी लगेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये तमाम मुहद्दिसीन जो थे मुशरिक थे कि ईमान वाले थे? कौन नहीं, ये तमाम मुहद्दिसीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने को जायज कह रहे हैं, इनको इनका क्या करोगे? इन्हीं के अमल पे हैं हम, और सहाबा के अमल पे हैं। चलिए क्या देखो रऊफ भाई, सुनो, वहाबी जो होता है 2 कौड़ी का आदमी नहीं होता। पता है क्यों? सुनो, जो इमाम हाकिम अपनी हाकिम अल मुस्तदरक में लाए, इमाम हाकिम फरमाते हैं मैं इसमें सारी सही हदीसें लेके आया हूँ जो बुखारी मुस्लिम में नहीं लिखी है। उन 2 किताबों में जो नहीं लिखी जा सकी वो मैं हाकिम अला सहीहैन में लेकर के आया हूँ, यानी कि अपनी किताब में। उसी किताब में ये वाकया लिखा है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पर्दा कर गए तो लोग उनके मज़ार शरीफ पे जाके दुआएं करते थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पे रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगा ये सारी दलीलें इंशाल्लाह, जो भी मैंने दलीलों की बात की है सारी लगा दूंगा इंशाल्लाह, सारी लगा देंगे। अब वहाबी 2 कौड़ी का आदमी पता है क्यों होता है? इसलिए होता है कि देखो, जैसे कि मान लो कि यहाँ से दुबई के अंदर एक घर है, उस घर के अंदर कुछ मेहमान आए जिनके कपड़े सबके काले थे, ठीक है, और उन लोगों के हाथ में सबके पास बैग थे। अब हिंदुस्तान में रहने वाला वहाबी बोला कि उनके घर जो ये उसको पता लगा कि दुबई के अंदर एक घर के अंदर 10 लोग आए हैं और काले कपड़े पहने हुए, सबके हाथ में बैग है। तो अब उसने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे 10 लोग कौन हो सकते हैं। उसने अपनी अकल इस्तेमाल करी और कह दिया कि भाई चोरी हो सकते हैं, ऐसे लोग तो चोरी हो सकते हैं। उसने अपनी अकल से फतवा लगा दिया कि वो चोर हैं। अब वहां जो सुन्नी थे हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम एकदम से चोर नहीं कहेंगे उनको। तुमने डायरेक्ट फतवा लगा दिया खाली उस घर के बारे में जान के कि उसमें 10 लोग आए, बस इतना जाना और फतवा लगा दिया। हम पहले उस घर के जो सबसे करीबी लोग हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, पहले उनसे पूछेंगे क्या वाकई ये चोर थे, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा करीब हो इस घर के, तो तुम लोग को मालूम होगा कि ये चोर है कौन है। तो उन मोहल्ले वालों से उन लोगों ने तहकीक करी, मोहल्ले वालों ने कहा ये चोर नहीं, ये मेहमान थे। तो अब उन मोहल्ले वालों की बात जो उस घर के सबसे ज्यादा करीब थे, सुन्नियों ने कहा उस वहाबी से, देखो वो मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि वो मेहमान थे, चोर नहीं थे। तो वो वहाबी क्या कह रहा है? चोर नहीं थे। वो मोहल्ले वाले कह रहे हैं चोर नहीं है। अच्छा तुम बताओ, चोर नहीं थे तो सब काले कपड़े क्यों पहने हुए थे, सबके हाथ में बैग क्यों थे? ये अकलें इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर। और मोहल्ले वाले कह रहे हैं चोर नहीं, सब मेहमान थे। तो ये बताओ किसकी बात मानी जाएगी? इस वहाबी की, मोहल्ले वालों की। ठीक इसी तरकीब से जो हदीस है किताबों में लिख के मुहद्दिसीन ने हम तक पहुंचाई है, तो इस वहाबी की बात मानी जाएगी जो डायरेक्ट हदीस पढ़ के अपनी अकल लगा रहा है, या जो हदीसों के सबसे करीबी लोग हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के सबसे ज्यादा करीब लोग हैं, उनकी बातें मानी जाएंगी, उनकी मानी जाएंगी ना। तो अब वो तो कह रहे हैं कि ये जायज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना। वो तो कुरान शरीफ में भी तफसीरें जब कर रहे हैं कुरान शरीफ की, से 1300 साल 1200 साल पहले के मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन जो तफसीरें कर रहे हैं कुरान शरीफ की, वो अपनी तफसीरों में लिख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज है। शिर्क किसी ने नहीं लिखा,
शिर्क खाली 1400 साल बाद ये वहाबी आके कह रहा है। तब ये बताओ, उन जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब है, जिनकी वजह से हमें हदीसें मिली, किताबें मिली, कुरान शरीफ हम तक पहुंचा, तफसीरें हम तक पहुंची, शरह हम तक पहुंची, दीन हमें सही से मिला, उनकी बातें मानी जाएंगी कि ये 2 पाँव के मुल्ला वहाबी जो 1857 में पैदा हुआ, इसकी मानी जाएगी, जो डायरी का कल इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, असल में देखिए कि ये क्या कह रहे हैं कि हमको डायरेक्ट हदीस को लेंगे, है ना। अब डायरेक्ट हदीस को नहीं सुनिए आप, कि हदीस को इनके पास डायरेक्ट आई, वो तो सहाबा तो अल्लाह के रसूल से लिया करते थे, इनके पास कैसे। दूसरी बात, कोई दुनिया का वहाबी, सबसे बड़े छोटे गिरे मरे हर वहाबी को चैलेंज है, एक हदीस शरीफ ऐसी ला दे कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगना नाजायज हो। शिर्क तो बहुत दूर की बात है, नाजायज हो। कुरान शरीफ से कोई एक आयत करीमा ऐसी ला करके दिखा दे कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की बात चलो दूर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये भी आया हो कि किसी सलफ सालेहीन की भी मजार पे जाके तुम लोगों ने अगर मदद मांगी, तो ये शिर्क तो बड़ी दूर नाजायज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फरमाया हो, नहीं फरमाया, बल्कि हदीसें मिलती है हमें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बयाबान में घूम जाओ तो अल्लाह के बंदों से मदद मांगो, पुकार लिया करो। ये हदीसें मिलती हैं। हदीसों में ये भी मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पे जाके सहाबा ने पुकारा है, तब ताबईन ने पुकारा है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको जायज लिखा है इस अमल को, और मुहद्दिसीन खुद करते चले आए हैं ये सारे अमल। ये वहाबी खाली अपनी अकलें इस्तेमाल कर रहा है, अरे ये हदीस ऐसी है तो इसका मतलब ऐसा होगा, वो हदीस वैसी है तो इसका मतलब वैसा होगा। जाहिल। हाँ वही तो हमारा अब ये कह रहा है कि मुहद्दिसीन पे फतवा नहीं लगाएंगे। अबे तो बरेलवियों पे क्यों लगा रहा है? बरेलवी भी तो वही कर रहे हैं जो मुहद्दिसीन कर रहे थे। अब तू नहीं भी लगा, हाँ तू नहीं भी लगाएगा तो भी मुहद्दिसीन पे फतवा लग जाएगा, क्योंकि तू उस अमल पे फतवा लगा रहा है। तो मामला तो तू वही पेश कर रहा है जी। अब रही बात वो बुखारी शरीफ की, वो हदीस शरीफ जिसमें वो तमाम 70 सहाबा शहीद हो गए, ठीक है। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ में, और मेरा महबूब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, यानी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहता। तो अल्लाह की मर्जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, ये सबसे बड़ा गैब है, ठीक है। तो अब हाँ, तो अब उस सहाबा को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं रोका, इसमें अल्लाह की मर्जी जानते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह चाहता है जो, इसमें अल्लाह की जो मसलिहत है, तो इस वजह से नहीं रोका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अब वो सहाबा जो थे उनका अकीदा देखे क्या था। अब ये कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं पुकारा, तो पुकारा तो अल्लाह को भी नहीं है कि अल्लाह तू हमारी मदद कर दे। तुम ये मतलब निकालोगे कि नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना यहाँ से गलत है, तो फिर अल्लाह से भी मदद नहीं मांगी है, तो यानी अल्लाह से भी मदद मांगना गलत है। फिर अब सहाबा ने कहा कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम तक हमारी बात पहुंचा दे, तो इस हदीस से हमें पता चला कि अल्लाह हमारे नबी को हमारी बातें सुनवा देता है। तो हमारा भी तो यही अकीदा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि भी तो अदालतुल मक्किया में यही फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से सुनते हैं। हमारा भी तो यही अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। तो यही मसला। और एक बिल्कुल मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग में सारे स्कैन लगा दूंगा, सारी दलीलें। और एक मसला और क्लियर हो जाता है यहाँ पर, वहाबियों का, जो वहाबियों के भद्दे दलाइल होते हैं ना, भद्दे। वहाबियों के पास असल में दलाइल कुछ नहीं है। जो मुल्हिद होते हैं ना, मुल्हिद भी ये हदीस पेश करते हैं और कहते हैं कि देखो 70 सहाबा को अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया, तो तुम्हारा इस्लाम सच्चा कहाँ है। मुल्हिद ही की तरह वहाबी भी पेश कर रहे हैं कि सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं बचाया, यानी नबी अलैहिस्सलाम वो अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहे हैं, ताकत का, ये नबी अलैहिस्सलाम की। तो ये मुल्हिद के रास्ते पे चल रहे हैं वहाबी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी वो है मेरे भाइयों। सुनने वालों से तमाम से ये कहना है कि अगर कोई मसला समझ में ना आए तो तहकीक करें, किताबें तलाश करें, किताबों में ढूंढें और उलमाए किराम से जो है राब्ता करें, तहकीक जरूर करें। किसी वहाबी की बातों में आकर अपने ईमान को बर्बाद ना करें।
اپنے آپ کو کبھی برباد نہ کریں، کیونکہ ان وہابیوں کے عقیدے کیا ہیں؟ وہابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان سے بھی کم علم ہے، فرشتوں سے بھی کم علم ہے، وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے معاذ اللہ۔ کیا کوئی سنی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عقیدے رکھنا گوارا کر سکتا ہے وہابی بن کے؟ دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، مرزائی کا بھی یہی عقیدہ ہے، پلمبری کا، کوئی ایسے عقیدے بنا سکتا ہے کوئی عاشق رسول؟ تو محدثین کے ہمیں عمل پہ رہنا ہے، قرآن و حدیث کو ہمیں اپنی عقل سے نہیں محدثین کے طریقے سے سمجھنا ہے۔ جن لوگوں نے ہم تک کتابیں پہنچائی ہے ان کی محنت کو ہمیں شرک، کفر، ناجائز، بدعت یہ سب نہیں کہنا ہے، ان کی محنت برحق ہے، اور اللہ رب العزت سے سب محبت کرتے تھے، سب اس کے مرغوب بندے ہیں۔ سب سے محبت کرنا ہے اللہ کے ولیوں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ دوحہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ اے محبوب جب کوئی تم سے سوال کرے تو اس کو آپ جھڑکنا نہیں، یعنی منع نہیں کرنا۔ تو اب جب ہم ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں تو اسی آیت پر عمل کرتے ہیں، آیت کریمہ پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کو منع نہیں کرنا کسی سوالی کو، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں منع نہیں کریں گے، اسی لیے ہم انہیں پکارتے ہیں، اور ہماری پکار اللہ ان تک پہنچاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اللہ کے ولیوں کو جو ہم پکارتے ہیں تو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 6502، اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ میرا بندہ میرا ہو جاتا ہے تو یہ جو بھی دعا کرتا میں قبول کرتا ہوں۔ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ یہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو قبول کرتا ہے۔ تو اب ہم جو وہ اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے، تو اب جب ہم اللہ کے ولی سے کہیں گے تو جو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کو اولاد دے دے، ان کی پریشانی میں آسانی کر دے، کہ ان کو اولاد دے دے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، کاروبار چلا دے، تو اللہ قبول کرتا ہے اللہ اپنے مرغوب بندوں کی، کیونکہ اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے مانگا، اللہ کو چھوڑ کے مانگا، تو وہ لوگ دب الفاظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے ولی یہ سب اللہ سے چھوٹے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ سے چھوٹے ہوئے معاذ اللہ۔ تو اب ان سے یہ سوال کرو، کل قیامت میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے لوگ مانگیں گے کہ ہماری شفاعت کیجیے، تو وہ اللہ کو چھوڑ کے مانگ رہے ہیں، یعنی کہ ہماری تو یہ سب وہابی جاہل لوگ ہوتے ہیں، یہ سب لوگ جہالت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو عقلیں دی لیکن ان لوگوں نے برباد کر لی۔ اصل میں یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کیا کسی پیغمبر یا ولی سے اپن صرف وسیلے کو چھوڑ کے ڈائریکٹ طلب کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کہ آپ؟ ارے بھائی جیسے کہ سمجھے نہیں، اللہ کے ولی سے ہم جب ڈائریکٹ مانگتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر پہلی ہی ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ۔ کیا کوئی مسلمان یہ سوچ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اللہ کے نیک بندوں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں یہ سوچ کے پکارتا ہے کہ ہم ان کو پکار رہے ہیں تو یہی مدد کریں گے؟ بھائی ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کریں گے، اور یہ جو مدد کرتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے، یہی تو ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی عطا سے ہماری مدد کریں گے، اللہ ہی سے دعا کریں گے۔ تو پھر ایسے جب تو ہم ان کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ پکارنا اس عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہی سے لے کے دینے والے ہیں۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں کی چابی میرے پاس ہے، اور تقسیم کرنے والا میں ہوں، دیتا وہ ہے۔ ارے جو تقسیم کرنے والے ہیں انہی کے در کو تم بین کرے دے رہے ہو کہ ان سے مانگنا شرک ہے، یعنی کہ تم مسلمانوں کو جہاں سے تقسیم ہونا تھا وہاں کا راستہ ہی بھلا دے رہے ہو، شرک بتا دے رہے ہو۔ تو مسلمانوں تک پہنچے گا کیسے وہ کھجانہ جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے دیا ہے؟ یعنی وہ جو ہمیں تقسیم کرتے ہیں، یعنی وہ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں اور تم لینے سے منع کر رہے ہو، شرک کے فتوے لگا رہے ہو۔ تو بھائیوں، ان وہابیوں سے، قذابوں سے، شیطان کے
پیروکاروں سے بچیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ